Good morning, students. Today we'll start trends in physical properties. So there are numerous physical properties of elements such as melting point, boiling point, heat of fusion, heat of vaporizations, energy of atomizations, etc. We show all the variation. So here we are discussing some basic physical properties like atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, etc. First we are taking atomic size. What is the meaning of atomic size? So all of you know कि जो एटम होता है और उसकी जो साइज होती है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी एलिमेंट्स की होती है दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक साइज. Atomic size of atom expressed in the term of radius. So atomic radius means the distance from the nucleus to outermost shell. Suppose this is the circle or sphere, this is the center of circle, and in maths already you know from centers to outermost shell, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of electron are known as atomic radius. So the distance from the center of the nucleus to outermost shell is known as atomic radius. However, it is not possible or radius are rather difficult to find exact radius of atom because of the following reason. क्योंकि उसके जो एटॉमिक साइज हम लोग पर्टिकुलरली फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसके कुछ रीजन है. पहला रीजन तो ये हो गया कि जो साइज ऑफ एटम होती है बहुत स्मॉल होती है, मीन्स 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर और 1.2 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो साइज होती है. सेकंड हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सराउंडिंग होता है एटम्स के आसपास डज नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज. एंड थर्ड, जो साइज ऑफ एटम है वो चेंज होता है विथ चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग. अलग अलग बॉन्डिंग होती है. ऑलरेडी यू हैव डन इन 10th क्लास आयनिक बॉन्डिंग, देन कोवेलेंट बॉन्डिंग. So here we are discussing the atomic radius. So there are three forms of atomic radius. पहला जो होता है आपके पास वो होता है covalent radius. So here is covalent radius. So you can write covalent radius जो होती है homo atomic और homo atomic molecules जो होते हैं like हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनमें होता है दोनों एटम जो है सेम टाइप्स के होते हैं, मीन्स covalent bond, covalent bond between the two non metals. So here one half the distance, this is the center of both the circle. So one half of the distance between the center of the two nuclei of two adjacent similar atoms joined together by a single covalent bond. This is the total distance of the both centers. So I am repeating, one half of the distance between the centers of the nuclei of two adjacent similar atoms. These are the similar atoms joined together by single covalent bond. So this is the atomic radius. Suppose यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 198 पिकोमीटर होती है. दिस इज द साइज ऑफ एटम्स. ये जो है पास टोटल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू क्लोरीन एटम इज 198 पिकोमीटर. And if you want to take one half of the distance, so one half of the distance from the center you are getting, this is 99 picometer. The atomic radius is the example. So you can write one half of the distance, the distance between the centers of the nuclei of two adjacent similar atoms joined together by a single covalent bond. This is the definition of covalent radius.
So here is example, like then covalent radius you can determine equal to 1 by 2 into internuclear distance between two covalently bonded atom. In this way you will find out. So इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यदि बात करें, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम is 198 picometer. Therefore, the covalent radius of one chlorine atom is equal to 98 picometer. 99 picometer. Another example ले हम लोग, second one example, the internuclear distance between two hydrogen atom is 74 picometer. Therefore, the covalent radius of hydrogen atom is equal to 37 picometer. That is the covalent radius. Now van der Waals radius. So this van der Waals radius जो है वो है half of the internuclear distance between the two adjacent atoms. So now van der Waals radius, so one of the internuclear distance between two adjacent atoms belonging to nearest neighboring molecules of the substance in the solid state. So these are the two molecules, they are the center of the molecule. Then van der Waals radius we will find out. You know this is the covalent radius. This is the covalent radius. But center of the two molecules. This is the center of two molecules, means this distance. This distance is known as van der Waals radius. Van der Waals radius. And this is covalent radius. So I am repeating again, the one half the intermolecular distance between the two adjacent atoms belonging to the two nearest neighboring molecules of the substance in a solid state. So जो हमारे पास van der Waals radius है, जो फोर्स एग्जिट हो रहा है बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो बहुत वीक होता है. सो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इन केस ऑफ एटम हेल्ड बाय van der Waals फोर्स आर लार्जर देन दैट बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स. सो जो van der Waals रेडियस होती है वो ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस होती है. नाउ नेक्स्ट इज मेटेलिक रेडियस. थर्ड वन इज मेटेलिक रेडियस. Now third one is metallic radius. So one of the intermolecular distance separate the metal cores in the metal crystal is known as metallic radius. और आप लोग another definition भी लिख सकते हो, the distance between the center of the nuclei of two adjacent atoms in the metal crystal. Then metallic bond is weaker than covalent bond
So intermolecular distance between the two atom is the metallic bond is more than in its covalent bond. So like potassium मेटेलिक रेडियस जो है 231 पिकोमीटर होती है और कोवेलेंट रेडियस जो होती है उसकी होती है 203 पिकोमीटर होती है. सेम इट इज एग्जाम्पल है हम कॉपर का. सो कॉपर इज जो मेटेलिक रेडियस होती है कॉपर की बिटवीन द टू एटम्स एडजेसेंट एटम्स इन सॉलिड स्टेट इज 256 पिकोमीटर, बट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होती है मेटेलिक रेडियस में वो हमारे पास होती है 128 पिकोमीटर्स. हम लोग देखें कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में कहां पर वेरिएशंस होता है, मींस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल. तो देयर आर टू टाइप्स होते हैं. हम लोग देखते हैं कि ग्रुप में चलते हैं तब और पीरियड में चलते हैं तब. फर्स्ट विल टेक वेरिएशन इन पीरियड्स. सो इन व्हेन वी विल मूव इन पीरियड्स या इन पीरियड्स द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. जब आप लोग मूव करते हो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस with increasing the atomic number. like हम लोग ले सेकेंड पीरियड ले. सो सेकेंड पीरियड जो है हमारे पास इट विल स्टार्ट फ्रॉम लिथियम सेकेंड पीरियड एंड एंड विथ नियॉन. सो व्हेन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस from lithium to fluorine in the second periods. Okay, it is also given in the table like lithium 152 picometers, beryllium 111, boron 88, carbon 77, nitrogen 74, oxygen 66, fluorine 63 or 64 something. So this way atomic radius decreases when we'll move from left to right in a periods. So बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है उसका रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इंक्रीज होगा, जिससे एटॉमिक रेडियस जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज होगी. देन इलेक्ट्रॉन्स गोज इन द सेम प्रिंसिपल सेल. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पुल द क्लोजर द न्यूक्लियस बाय द इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. वही वेरिएशन देखें, वेरिएशन ग्रुप. सो इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर. आप लोग जब ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो इंक्रीजेस. सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेजुअली इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू इज टुडेज आयनिक रेडियस. Before that we discuss atomic radius. There are three types: covalent radius, van der Waals radius and metallic radius. Now next one is ionic radius. So actually ions, you know, ions are electrically charged species formed by exchange of ions or exchange of electrons. So there are two types of ions. One is cation, another one is anion. So removal of electron from an atom, जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्पीसीज फॉर्म होगी जिसे हम बोलते हैं केटायन. और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, मींस इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव स्पीसीज मींस केटायन, नेगेटिव स्पीसीज एनायन. सो आयनिक रेडियस जो है कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल्स. वो हमारे पास क्या होगी, आयनिक रेडियस होगी. या आप लोग ले सकते हो कि इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयंस. ये जो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द टू आयंस, वन इज एनायन अनदर इज केटायन. सो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयंस, सो दैट पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज एन इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड. या डिस्टेंस बिटवीन द केटायन एंड आयन, दिस द एनायन एंड दिस द केटायन. एंड हियर यू हैव सी the size of anion is bigger as compared to size of size of cation. So हम लोग definition लिख सकते हैं ionic radius की, the distance between the cation and anions in ionic crystals. In general, ionic radius of element exhibits the same trend as the atomic radius. जो cation होगा smaller होगा than its parent atom. क्यों? What is the reason? It has only fewer electron because it will lose the electron
लाइक सोडियम एलिमेंट्स की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 3 सेल्स. सो आउटर मोस्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. 2 8 1. So this is the 1 electron outermost shell, so it will lose the electron, so it have only 2 cells. So cation has a smaller than the parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remain the same. Same it is. हम लोग बात करें एनायंस की. सो एग्जाम्पल ले क्लोरीन का 287. so it has 7 electron in outermost shell, it will gain 1 electron. So size of anion will be larger than that the parent atom because addition of 1 or more electron which are increasing the repulsion among the electrons and decreasing in effective nuclear charge, जिससे आपके पास एनायन की जो साइज होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू केटायन. एग्जाम्पल ले हम लोग कि आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन की बात करें तो उसकी होती है 136 पिकोमीटर एंड वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो उसकी 72 पिकोमीटर होती है, जबकि फ्लोराइड आयन की 136 पिकोमीटर होती है. और यदि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के हमारे पास 72 पिकोमीटर होती है. सेमेटिस हम लोग बात करें मेटल्स की बात करें, एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम मेटल सोडियम की बात करें तो वो हमारे पास 186 पिकोमीटर होती है. लेकिन आफ्टर द लूजिंग द इलेक्ट्रॉन मींस केटायन जब फॉर्म हो जाता है तो आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है, 95 पिकोमीटर हो जाती है. सो आयनिक रेडियस जो होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगी बिटवीन द केटायन एंड एनायन. सो आई एम राइटिंग हियर example. The ionic radius of fluoride ion F negative ion is 136 picometer, whereas the atomic radius of fluorine is only 172 picometer. On the other hand, the atomic radius of sodium metal is 186 picometer compared to the ionic radius of 95 picometer of sodium. So this is the radius in this way. So this is the ionic radius. Now here is the two graph. First is variation of atomic radius with atomic number, atomic radius with atomic number across the second period. ये second period के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सो एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एटॉमिक रेडियस थी. सो एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास लिथियम डिक्रीजेस व्हेन विल मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लिथियम से हमारे पास फ्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है. बट यदि हम लोग बात करें इस साइड्स ग्रुप्स की बात करें, दिस द इन द पीरियड्स अनदर ग्राफ है यदि हम लोग देखें. सो द फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. सो एटॉमिक रेडियस जो होगी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर. एंड 17 group as also like fluorine, chlorine, bromine, iodine, 17 group halogen family. Atomic radius also increases due to increasing the atomic number. So this is the variations in period as well as group. This is the variations in period as well as group. Now another term will come, isoelectric species. Isoelectronic species. Isoelectronic species. So isoelectronic species means ions having the same number electron
which contain the same number of electron are known as isoelectronic species. Same number of electron, ions which contain the same number of electrons are known as isoelectronic species. Example लें, like oxide ion, fluoride ion and sodium ion. Oxide ion, fluoride ion, sodium ion and magnesium ion. यदि हम लोग इसकी बात करें, सो सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो बट देयर रेडियस जो होगी वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज. मीन्स द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव द स्मॉलर रेडियस. मतलब आपके पास जो मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दे आर फॉर्मिंग द कैटायन, तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा बिकॉज दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. तो उनकी जो रेडियस होगी स्मॉलर रहेगी, स्मॉलर रेडियस, बिकॉज of the greater attraction of the electrons to the nucleus. That is the first reason. So पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, सो कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो रेडियस छोटी रहेगी बिकॉज ग्रेटर द अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस. अब हम बात करें अदर एंड की, वो है हमारे पास एनायंस. सो एनायंस विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज will have the larger radius because they are gaining the electrons, and size of anion is bigger than size of cation. That's why हमारे पास जो है anion जो है इसकी larger radius होती है as compared to cation. Then this is the graph and isolated species and ionic radius. Good morning student. Next topic is ionization enthalpy or ionization potentials. So first is, what is the meaning of ionization enthalpy or ionization potentials? So ionization enthalpies are ionization energy. Means you can write the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from the neutral isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Means जो भी electrons remove करना है, you will require some energy. So we know that electron is an atom or it is by the positively charged nucleus. So therefore to remove an electron from atom, enthalpy has to be supplied. Means energy has to be supplied. So जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेगा, इट विल जंप फ्रॉम पॉजिटिव स्पीसीज एंड फ्रॉम द पॉजिटिव आयंस. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ गैसेस एटम. सो वो हो गया पास आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी ऑल्सो नोन एज आयनेशन पोटेंशियल्स, because it is required the minimum potentials to remove the most loosely bound electron from the rest of atom. That's why it is known as ionization potentials. In other words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change del I H for the reaction derivative equations element. It will lose one electron, so it will form one positive ion. So here is also required some energy to remove the electron from the isolated gases atom. So the minimum amount energy जो रिक्वायर हो रही है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम से, वो कहलाती है पास आयनेशन एंथैल्पीज और आयनेशन एनर्जी. सिमिलरली हम लोग बात करें कि जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो हमारे पास मेजर होती है और इट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट किलोजूल पर मोल. दिस द एसआई यूनिट ऑफ एंथैल्पी एनर्जी, ionization enthalpy और ionization एनर्जी किलोजूल पर मोल. सो जो सेकेंड ionization enthalpy होती है, दे ऑल्सो रिक्वायर सम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. यदि आपके पास
कोई गैसेस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, गैसेस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर मोर एनर्जी देन द फर्स्ट वन. So first one also lose the electron. This is the positive species. It will lose one more electron. So here also will require more energy as compared to the first one. So it will lose the electron and form the positive species. So energy always require to remove the electron from an atom. चाहे वो आपके पास पॉजिटिव स्पीसीज हो और न्यूट्रल एटम हो, तो एनर्जी इज रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव or neutral atoms. So ionization enthalpies are always positive. Second ionization enthalpy will be higher than the first one. Ionization enthalpy because जो हमारे पास second electron, it is more difficult to remove the electron from the positively charged species that from a neutral atom. वैसे हमारे पास जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पीज हैं, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा हायर होगी एज कंपेयर टू सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, बिकॉज आफ्टर द रिमूविंग द टू इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी. तो आप लिख सकते हो कि आयनेशन एंथैल्पी जो होती है थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है देन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी से, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी से. या लिख सकते हो आप कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है H1 ग्रेटर देन H2 देन H3, जिसे बोलते हो एंथैल्पी चेंज इन दिस सीक्वेंस. सो दिस इज द एंथैल्पी. सो आयनेशन एंथैल्पीज मीन्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, वो कहलाती है हमारे पास आयनेशन एंथैल्पी. सो आयनेशन एंथैल्पीज वैल्यू जो है दे आर टेलिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लिक फोर्स. मीन्स यदि आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू हमारे पास लोअर है, लोअर इज द न्यूक्लियर फोर्स. आयनेशन एंथैल्पी जो है हमारे पास लोअर द वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, वीकर इज द न्यूक्लियर फोर्स एंड हेंस इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. जितनी ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, देन बॉन्ड जो होगा, फोर्स जो होगा वो वीकर होगा एंड इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम. सो हियर इज ऑल्सो समथिंग इज गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर up to 60 here is are plotted in this figure. The periodicity of the graph is quite striking. कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो नोबल गैसेस हैं हैव क्लोज इलेक्ट्रॉन शेल्स, क्योंकि ऑक्टेट फुल्ली कंप्लीटेड होते हैं, एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, कि उनके पास कोई आउटर मोशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑक्टेट फुल्ली कंप्लीटेड होते हैं. दैट्स वाई दे आर not losing the electron, not getting the electron, because outermost shell have completely octet. That's why हम लोग अदर हैंड की बात करें तो मिनिमम ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करें, ठीक है, एंड देयर हैव लो आयनेशन एंथैल्पीज. इट इज रिलेटेड विद द हाई रिएक्टिविटी. लो आयनेशन एंथैल्पी इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स. सो रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी. सो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करें हमने, जनरली इंक्रीज होगी एज वी मूव गो अक्रॉस अ पीरियड. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास आयनेशन एंथैल्पी इन अ पीरियड जो होगी वो इंक्रीज होगी. वाइल जब हम लोग मूव कर रहे हैं, ना ग्रुप मूव कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी इन द ग्रुप, जो कि ग्राफिकली आपके पास रिप्रेजेंट है, या आपके पास रिप्रेजेंटेशंस हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस हैं. तो एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड्स एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो ग्राफिकल है वो आपके पास कर रहा है. सो एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज की रिएक्शन, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दूसरा है रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर. देयर आर टू फैक्टर्स, मीन्स जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस एंड क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज,
उस ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग टू टर्म समझें कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच अदर. सो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दे आर अप्लाई एक्सपीरियंस फोर्स बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो कि लेस होगा. सो हमारे पास जो आयनेशन एंथैल्पीज है, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट व्हेन विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी. सो here is first आयनेशन एंथैल्पी of element of the second period function by atomic radius, and this is the another one, alkali metals and atomic number. So this is the alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So atomic radius जब आप लोग आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो when we will move from top to bottom, atomic radius decreases, but in a period when you will move from in a period, so आयनेशन एंथैल्पी increases in this way. This is the period part. This is the period part, like lithium 520 picometers, beryllium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. And here is the in a period when we move from top to bottom, atomic radius जो है वो decrease हो रही है, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So atomic radius जो है decrease हो रही है due to the ionization enthalpies. Ionization enthalpy also decreases. Atomic radius increases, but ionization enthalpy decreases when you move top to bottom. Some factors which are affecting the ionization enthalpies. तो सबसे पहले आपके पास एटॉमिक साइज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीन इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस. So one by one, just I am discussing. So first one will discuss atomic size. How atomic size affect the ionization enthalpy. So all of you know, when we will move from top to bottom, जब हम लोग ग्रुप में चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है ग्रुप की बढ़ती है, लेकिन आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पर ग्रुप में जो है डिक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है? उसका रीजन ये है कि जब आप जो है एटम्स की बात करें, लिथियम, तो लिथियम में जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो का डिस्टेंस होगी, एटॉमिक साइज जो होगी या एटॉमिक रेडियस होगी, वो लेस होगी. व्हेन विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज होगा जब आप लोग ऊपर से नीचे मूव करेंगे इन अ ग्रुप. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होगा उतना वीकर होगा, और जितना ज्यादा वीकर होगा, इजी टू ब्रेक. दैट्स वाई आयनेशन एंथैल्पी जो होगी जब आप लोग मूव करेंगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी. दैट इज द रीजन बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज. फर्स्ट रीजन. नाउ हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो हमारे पास होगा किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूक्लियस के बीच में. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑन द न्यूक्लियस, सॉरी ऑन ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? आपके पास इंक्रीज होगी. अब थर्ड बात करें हम लोग स्प्रिंग इफेक्ट. स्क्रीन इफेक्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर शेल में, लाइक हमारे पास एस शेल, पी सेल, डी सेल, एफ सेल. सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल वो एक्ट करते हैं एज अ स्क्रीन. अब किसके बीच में एक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हो स्क्रीन इफेक्ट की. इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे बोला जाता है स्क्रीन इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट. स्क्रीन इफेक्ट का अदर नेम भी है शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है. सो
आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीन कांस्टेंट, तो आपके पास स्क्रीन इफेक्ट भी आपके पास आयनेशन एंथैल्पी को जो है अफेक्ट करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट, व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? सो पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस. पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, more will be the attraction of nucleus for the electron, and it is greater is difficult in removing the electron from the atoms. मतलब जितना ज्यादा एटम क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के पास रहेगा, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, नहीं तो उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है. और क्लोज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा, जिसके कारण आपको रिक्वायर रहेगी बहुत ज्यादा एनर्जी, जिसके कारण क्या होगा आपके पास, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम जो होगा कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल देन अदर. लाइक हम लोग बात करें नोबल गैस की बात करें, तो हीलियम जो होता है उसके पास डुप्लेट होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन हिज पीरियड, तो उस पीरियड में उसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. बेरिलियम भी ऐसे ही होगा, देन सोडियम होगा.